Hello students, I am Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Today we'd like to see English Practice Paper 8 assignment paper of 80 marks, and for that as usual we are going to read the passage and select the correct answer from the option given below it. First of all, section A, I would like to read the uh, paragraph. The class roared. I had to laugh too, though I would nearly exhausted or tired my ingenuity on the topic of chatterbox. Chatterbox मतलब जो बार बार बहुत सारी बातें करता है वो. It was time to come up with something else, something original. My friend San, S-A-N-N-E, Sani, who's good, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kazing, जो मैथ्स के टीचर थे, was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर कैजिंग वॉज ए डैश टीचर, तो क्या मैथ्स टीचर. मिस्टर कैजिंग वॉज ए डैश टीचर, मैथ्स टीचर, ऑप्शन ए. अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक, डैश टॉपिक वॉज रिडिकुलस इन नेचर, तो डैश टॉपिक वॉज रिडिकुलस इन नेचर, चैटर बॉक्स, ऑप्शन बी. चार ऑप्शन दिए है, लेटर बॉक्स, चैटर बॉक्स, लंच बॉक्स एंड फ्रेंच ट्रांसलेशन. तो आंसर इज राइट आपका चैटर बॉक्स. अब हम लोग इसके दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन पे. गुडनेस, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. She turned around and stole मतलब कि चोरी करना, stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. She had to fight Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her, and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and 100 dresses were beautiful. तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग देखते हैं. Why Maddie wanted to find Wanda? Why Maddie wanted to find Wanda? तो इसका आंसर है आपका पैराग्राफ में से. Maddie held herself responsible. Maddie held herself responsible for Wanda's leaving the town. So to apologize, she wanted to meet Wanda. I repeat, Maddie held herself responsible to Wanda's leaving the room, for Wanda's leaving the town, sorry. So to apologize or to make sorry, she wanted to meet Wanda. Question 4. Which heights Maddie wanted to climb? Which heights? Maddie wanted to climb Boggin Heights, where Wanda lives. Boggin Heights, answer है. Third question, which contest Wanda had won? Which contest Wanda Petronsky had won? Very simple, drawing and painting. But आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे Wanda had won the drawing and painting contest organized in the school. अब आपकी ब्लैंक से आप जानते हैं ब्लैंक 6, 7, 8, 9, 10. तो 6 में आंसर आएगा आपका 6 में आंसर आएगा बॉगिन हाइट्स, 7 में स्वॉर, 8 में फॉरबिडिंग, 9th में नवंबर और 10th में ड्रिजली. The two girls hurried out of the building up the street toward Boggin Heights. The part of the town that swore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो आपको मैंने ऑप्शन बता दिया. आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6 में आपका आंसर होगा बॉगिन हाइट, 7 में स्वॉर, 8 में फॉरबिडिंग, 9th में नवंबर और 10th में ड्रिजली. ड्रिजिंग होती है ना, मतलब कि धीरे धीरे बारिश होती है वो.
अब हम लोग क्वेश्चन 20 और 21 पे जाएंगे. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, सिलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच. तो इसमें डोंट बाइट है तो नो, नॉट, नेवर ऐसा आता है. इसका स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन है तो एक लिटोट्स है और पीछे एक्सक्लेमेशन की साइन है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी. 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको: सिमिली एंड मेटाफोर, एपोस्ट्रोफी एंड एक्सक्लेमेटरी, लिटोट्स एंड एक्सक्लेमेटरी, एनास्ट्रोफी एंड एक्सक्लेमेटरी. तो डोंट बाइट योर नेल्स कॉमा अमांडा एक्सक्लेमेशन, तो लिटोट्स एंड एक्सक्लेमेटरी ऑप्शन सी. लिटोट्स एंड एक्सक्लेमेटरी ऑप्शन सी. 21, क्वेश्चन नंबर 21, आई एम एन ऑर्फन. पीछे सिर्फ कुछ भी नहीं है, आई एम एन ऑर्फन. तो इसका आंसर क्या आएगा? तो क्या मेटाफोर. इट इज मेटाफोर. योर आंसर इज मेटाफोर. दूसरे ऑप्शन कौन से दिए गए हैं? तो सिमिली, आयरनी, एक्सक्लेमेटरी. बट यहाँ पे इम्प्लाइड कंपैरिजन ऑफ दिस गर्ल एज एन ऑर्फन, तो इट इज मेटाफोर. अब हम लोग सेक्शन सी पे चलते हैं. सेक्शन सी, रेक्टिफाई द एरर. बराबर. देन आई एम बैक टू द पॉइंट. तो देन के बदले नाउ, देन के बदले नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट. दैट प्रॉम्प्ट्स मी टू कीप ए डायरी. प्रॉम्प्ट्स के बदले आएगा प्रॉम्प्टेड. प्रॉम्प्टेड. दैट प्रॉम्प्ट्स मी टू कीप ए डायरी. प्रॉम्प्ट्स का आएगा प्रॉम्प्टेड. इन द लास्ट प्लेस, लास्ट के बदले आएगा फर्स्ट प्लेस. I do have a friend, तो I don't have a friend. तो वापिस से मैं आपको बता दूं, 28 में then के बदले आएगा now, 29 में prompts के बदले आएगा prompted, 30 में आएगा last के बदले first, और 30 में do के बदले don't आएगा. ब्लैंक्स देखते हैं आपके, राइट. ब्लैंक्स में 32, an hour later the car veered off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiyabari tea estate. तो इसका मैंने पूरा आंसर भी बता दिया. अब डैश आवर लेट, बराबर, डैश आवर लेट, तो एन आवर लेट द कार वियर्ड, तो वियर्ड ऑफ द मेन रोड. इसके बाद आएगा they crossed a cattle bridge and entered Dhekiyabari tea estate. तो 32 में आपका पहला ब्लैंक n, 33 में ऑफ, 34 में they एंड 35 में a and d एंड. ऐसा आंसर है. अब आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका very important one, and that is what? Indirect narration. You guys are knowing how important it is. More the practice you will do, more you can able to write it very fluently. Convert the following into indirect form of narration. तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. Hope so, said Peggy eagerly. दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है. Peggy उसको बोलती है, Do you think Miss Mason will announce the winner today? तो इसका आंसर मैडी क्या देती है? Oh, I hope so, the minute we get in, and also add किया कि you will win. तो Peggy ने eagerly आंसर दिया hope so, क्योंकि उसको ऐसा ही था कि वो ही जीतेगी. अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं. Peggy asked if she thought Miss Mason would announce, यहाँ पे ed नहीं लगेगा, will का would हुआ, would announce the winners that day. Maddie said she hoped so the minute they got in, and told Peg that she would win. Peggy eagerly hoped the same. और वापिस आंसर बोलता हूं, ध्यान से सुनो. Peggy asked if she thought Miss Mason would announce the winner that day. Maddie said she hoped so the minute they got in, and told Peg that she would win. Peggy eagerly hoped the same.
अब इसके जो आपके मेनली डू एस डायरेक्टेड है वो हम लोग देख लेते हैं। पेपर नंबर 8 के डू एंड डायरेक्टेड। तो पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर उसका आंसर बताऊंगा। सी सोड हिम सम कॉइन्स। सी सोड हिम सम कॉइन्स। पैसिव वॉइस बनाना है। कौन सा वॉइस? पैसिव। तो ही वॉज शोन सम कॉइन्स बाय हर। आंसर है ऑप्शन ए, ही वॉज शोन सम कॉइन्स बाय हर। नेक्स्ट वन है दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। क्वेश्चन टैग, दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। तो इसका आंसर है दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड डिडंट दे? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद 39, 39 में द रोड वॉज वेरी नैरो। एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो हाउ नैरो द रोड्स वॉज, हाउ नैरो द रोड वॉज, एक्सक्लेमेशन की साइन, ऑप्शन बी। 39 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर। एसर्टिव बनाना है। व्हाट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर। तो आंसर है ऑप्शन डी, आई शुड नॉट बिहेव इन दिस इडियोटिक वे। आंसर इज ऑप्शन डी, आई शुड नॉट बिहेव इन दिस इडियोटिक वे। 41 देखो, द बुद्धा sermon is over 2500 years old। इंट्रोगेटिव बनाना है। बुद्धा sermon is over 2500 years old। तो इसका ऑप्शन है बॉल बी। Isn't the Buddha's sermon over 2500 year old? और क्वेश्चन मार्क, isn't the Buddha's sermon over 2500 years old? और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू, यूजिंग टू, राइट। तो इसमें आप लिखेंगे न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, राइट। न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। ऐसा नहीं लिखेंगे न्यूज इज टू गुड दैट इट हैज टू बी ट्रू। द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू 42 में, सॉरी 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 सॉरी, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। Option A, the news is too good to be true. Next one, 43, last one. I was not troubled by the laws of man or God. Active voice बनाना है। कौन सा voice? Active voice। तो इसमें आंसर क्या आएगा? I was not troubled by the laws of man or God। तो इसका आंसर है the laws of man or God did not trouble me। The laws of man or God did not trouble me, option B। तो सभी के ऑप्शन एक बार बता दूं, अगर मैंने आपको पीडीएफ भेजना है तो 37 में ऑप्शन ए फॉर एप्पल, 38 में ऑप्शन सी फॉर कैट, 39 में ऑप्शन बी फॉर बॉल, 40 में डी फॉर डॉग, 41 में बी फॉर बॉल, 42 में ए फॉर एप्पल एंड 43 में बी फॉर बॉल। यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल सेक्शन प्रैक्टिस पेपर 8 का खत्म हो गया। तो दस आउट हमारा 8 पेपर कंप्लीट हो गया, अभी 4 रह गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप उसके वीडियो की राह देखते रहो। इफ यू लाइक दैट दिस वीडियो इज गुड फॉर माय स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। संजय पुरोहित, गुड बाय।